انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ اور میرا ایمان کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ہے، یا تو در پہ بلا دیا جائے گا یا در دکھا دیا جائے گا۔ اللہ کرے ایسی حاضری لگانا ہمیں مقصود ہو جائے۔ آج مبارک مہینہ، اور جنہوں نے اس محفل میلاد کا انعقاد کیا، اتنی تفصیل میں نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ ہمارے برکت بھائی کے صالح ثواب کے لیے آج کی محفل کا آغاز کیا۔ یقیناً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کو امام حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب النعمۃ الکبریٰ کے اندر نقل فرمایا۔ آپ فرماتے لوگوں سنو، جس نے میلاد مصطفیٰ کے اندر 1 درہم خرچ کیا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے علی شان کی اسی کتاب کے اندر نقل ہے، صفحہ نمبر 7 اور 8 کے اندر آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، جس نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجایا ایسا ہے جیسے اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس نے میلاد مصطفیٰ کے اندر شرکت کی وہ اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے بدر و حنین کے مارکے کے اندر شرکت کی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کون ہے کہ جنہوں نے آنکھیں یا گوش مصطفیٰ بھی کھولی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، جس نے میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کی یا اس کا سبب بنا، تعظیم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بس آ کے بیٹھ گیا ہے ادب سے، کوئی ایسا لفظ نہیں منہ سے بولا، وہاں لنگر نہیں صحیح تھا، ان کا پکانا نہیں صحیح تھا، نعت خوان نہیں صحیح تھے، کتاب نہیں صحیح تھا، انہوں نے دریا نہیں، انتظام نہیں صحیح تھا، کیا ایسا نہ کیا، تعظیم کی، ادب کیا، اور فرمایا جو سبب بنا، سبب کسی نے دریا بچھا دی ہو، کسی نے کوئی لنگر کا اہتمام کر دیا ہو، کسی نے چل کے آ گیا ہو، سبب بنا، فرمایا جب وہ جائے گا نا دنیا سے ایمان ساتھ لے کے جائے گا، ایمان ساتھ لے کے جائے گا۔ یہ مولا علی کرم اللہ وجہ اللہ فرما رہے ہیں، ایمان ساتھ لے کے جائے گا۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب ان سے فرما دے کہ یہ چاہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے فرما دے فاتبعونی، میری اتباع کر لے، کہاں بھی الٹ ہو جائے گا، یحببکم اللہ، رب ان سے محبت کرے گا۔ فرمایا رب ان سے محبت کرے گا، جب یہ میری اتباع کریں گے، میری اتباع میں آ جاؤ، پھر کیا ہوگا، فرمایا پھر یحببکم اللہ، یہ کہتے ہیں نا اللہ سے محبت کریں، پھر اللہ ان سے محبت کرے گا، اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ لاہور کی سرزمین پہ کھڑے ہوتے ہیں، نماز کی حالت کے اندر ہوتے ہیں، قبلہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھا بھی رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے اگر غیر بھی آ جائے اور کہے بابا جی ہمیں راستہ دکھا دے، آپ کہیں راستہ دکھا دے یا راستہ بتا دے، کہیں بزرگ دکھائی دے اور بتا دے کون سا راستہ ہے، آپ اشارہ کریں سامنے گنبد خضرا دکھا دے۔ وہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کے در فیض سے فیض پانے والوں کے چہروں کو دیکھ کر 90 لاکھ نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مجھے واقعہ یاد آ گیا، اپنے ایک غلام کو کہتے ہیں ملیا یہ لے جاؤ دریا سے پانی بھر کے لا، آپ کا پانی روک دیا گیا تھا، تو آپ نے وہ کاسا پکڑایا تو سارا دریا اس کاسے کے اندر آ گیا۔ آپ کی تفسیر میں لکھا ہے سارا دریا اس کاسے کے اندر آ گیا، اس کٹورے کے اندر آ گیا۔ وہ لے کے بابا جی کے پاس چلے گئے کہ اس کے اندر تو سارا دریا آ گیا۔ اب ذہن میں نکتہ آتا ہے یار وہاں کربلا کا موقع تھا، امام حسین ایک پانی کی بوند کے لیے، امام عباس جو تھے وہ مشق بھرنے کے لیے گئے، بازو کٹوا بیٹھے، لیکن معاملہ کیا تھا، یہاں ان کے بعد میں آنے والوں نے ایک کٹورے کے اندر پورا دریا سما لیا ہے، اور وہاں پر کربلا کا میدان تھا جو ان سے بہت بڑی فضیلت کے والے تھے، اور انہوں نے اپنے بازو بھی کٹوائے تھے۔ تو یہ معاملہ کیا ہے، یہاں پورا دریا کاسے میں سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیوں جب ایک دل کا مفتی بیٹھا ہوتا ہے جس کو عشق کا مفتی کہتے ہیں، اس سے پوچھا جاتا ہے، وہ بتاتا ہے یہ معاملہ اسلام کو بچانے کے پھیلانے کا تھا، اور کربلا میں اسلام کو بچانے کا معاملہ۔ اسلام پھیلانے کے لیے کرامت ضروری ہوتی ہے، اور اسلام کو بچانے کے لیے شہادتیں ضروری ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ حسین پانی کو ترسے تھے، پانی ترستا تھا حسین کے لبوں کو چھونے کے۔ آج ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا میری اتباع کر لو، اللہ تم سے خود ہی راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے ایک اور جگہ پر فرمایا، میں نے یہ آیت کریمہ جو میں نے پہلے پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ان سے فرما دو کہ اگر اللہ کا فضل آئے، قل بفضل اللہ، جب اس کا فضل آئے اور اس کی رحمت آئے تو پھر کیا کرو، خوشیاں مناؤ۔ توجہ سے چند لمحے گفتگو ہونی ہے کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے، کہ جب اللہ کا فضل آئے اور خوشی آئے، رحمت آئے تو خوشیاں مناؤ۔ فضل کیا ہے، اللہ خود ہی فرماتا ہے میرا فضل کیا ہے
फजल तो हमारे नजदीक सारे हैं, लेकिन रब से पूछ लेते हैं बड़ा फजल क्या है। फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा बदाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको शाहिद गवाह बना के भेजा, मुबश्शिर खुशखबरी सुनाने वाला, नज़ीर डर सुनाने वाला, दाई इलल्लाह अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, व सिराजन मुनीरा और चमकता हुआ रोशन आफ्ताब बना के भेजा, मुबश्शिरिल मुमिनीन और खुशखबरी दो मोमिनों को बि अन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। फरमाया ये अल्लाह का इन पर सबसे बड़ा फजल है, सुभान अल्लाह, इन पर सबसे बड़ा फजल है। और आगे फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह ने यहाँ पर फरमाया मैंने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को शाहिद बनाया। शाहिद का माना होता है गवाह बनाया। महबूब मैं करीम हूँ, मेरे करम के गवाह भी तुम हो, मैं रहीम हूँ, मेरी रहमत के गवाह भी तुम हो। महबूब जिसने मेरे दरबार तक आना हो तुम्हारे दर तक आ जाए, महबूब जिसने मुझे देखना हो वो तुझे देख ले, महबूब जिसको तूने अता कर दिया समझ लो उसे मैंने अता कर दिया। मैंने अपनी जात का तुझे मजहर बना के भेजा है, इसलिए जो तुझे देखने का समझ ले उसे मुझे देख लिया। वो ये महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नूर अता फरमाया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा तो ईमान और यकीन है कि सबसे पहले अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलाम के नूर को पैदा फरमाया था। क्यों? हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया। और यहाँ पर शाह वलीउल्लाह आप हद से देर भी तो कमाल कर छोड़ा। आप फरमाते हैं सरकार नूरे अव्वल तो है ही है, फरमाते हैं रब के तसव्वुर में जो पहली बात आई थी वो मुस्तफा की बात। हुजूर तो तसव्वुर अव्वल है, हुजूर तसव्वुर अव्वल है। सहाबा इकराम ने पूछ लिया मता वजबत लकल नबुव्वत या रसूलल्लाह कब से नबी है? ये पूछना बनता था उनका? नहीं बनता था, उन्हें पता नहीं था 40 साल बाद तो नबूवत का ऐलान कर रहे हैं और हम पूछ रहे हैं कब से नबी है। या 40 साल बाद जब इनकी विलादत कब हुई है हम पूछ रहे हैं कब से नबी है। तो फिर क्यों पूछा था? इसलिए कि बैठे सहाबा में थे, बात आदम की हो रही थी। मेरे सहाबा आदम को यूं पैदा किया गया, यूं मिट्टी को लाया गया, यूं बोया गया, यूं रूह डाली गई, यूं सजदा किया। जब ये अंदाज था तो फिर पूछना तो बनता था कि बैठे हमारे पास बातें आदम की, कब से नबी है? तो फिर पूछा बता वजबत लकल नबुव्वत कब से नबी है? तो महबूब अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान में था। अब यहाँ पर नुक्ता गौर करने का है, जो सवाल सहाबा ने किया था उसका जवाब हुजूर अलैहिस्सलाम ने नहीं दिया। मैं आदम से कहना चाहता हूँ ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो जवाब गलत बनता है, लेकिन जो मेरे आका जवाब दे देते हैं उससे बेहतर जवाब कोई नहीं होता। उससे बेहतर जवाब पूछा क्या गया था कि आप कब से नबी हैं? बता के अंदर टाइम होता है, टाइम पूछा गया था। अरबी के अंदर उर्दू के अंदर कब महफिल शुरू होनी है, कब जाना है, कब आना है, कब पार्टी का टाइम है, टाइम पूछा गया था, वक्त पूछा गया था। लेकिन हुजूर ने वक्त नहीं बताया। पंजाबी में कहते हैं कदों जाना है, कदों आना है, इंग्लिश में कहते हैं बैल, बैल के अंदर टाइम होता है। हुजूर से टाइम पूछा गया था लेकिन मेरे आका ने टाइम नहीं बताया। फरमाया मैं तो उस वक्त भी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान में थे। टाइम पूछने वाले में टाइम कैसे बता दूं? टाइम तो सूरज के चढ़ने से होता है, टाइम सूरज के गुरूब होने से होता है। उस वक्त ना तो चांद न सूरज न सितारे न कब न जब न कब कुछ ना था। अल्लाह ने जब तेरे नबी के नूर को पैदा किया था। कहते हैं पानी पी रहे, खाक और आपके माँ बहन थे जिस दम आदम, खाक और आपके माँ बहन थे जिस दम आदम, बद में लौ लाख में थे उजाले तेरे। ये है इतना वक्त नहीं कि एक मौजू को लेकर मैं चलूं, मेरे पास सिर्फ आधा घंटा मुझे दिया गया, उसमें से भी 5 मिनट कम ही हो गए। तो ये मौजू को बैठ के सुनना, नाते तो सुनते रहते हैं लेकिन एक मौजू को बैठ के सुनना कि हुजूर की विलादत कब हुई थी। उन्होंने देखिए अपना टाइम ही मुझे दिया है और मेरा ये मकसद नहीं कि मैं इससे मजीद और टाइम आगे लेता चलो, जितनी टाइम मुझे दिया उसमें खत्म करूंगा इंशाल्लाह। तो नबी अलैहिस्सलाम की जात को अल्लाह ताला ने क्या अता फरमाया? सहाबा इकराम फरमाते हैं खुदा की कसम हुजूर के जिस्म अतहर से इतनी खुशबू आया करती थी जब हमने उनको तलाश करना होता था ना उन गलियों से तलाश कर लेते थे जिन गलियों से खुशबू आती थी। आपके पसीना और सरकार जिस यतीम बच्चे के सर पे हाथ रख देते थे ना सारा दिन उस बच्चे के सर से खुशबू आती रहती थी। और हुजूर अलैहिस्सलाम के पसीना मुबारक से इतनी खुशबू आया करती थी। हजरत उम्मे साद रजी अल्लाह तआला ने फरमाती है कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर से पसीना मुबारक उतार लिया करती थी।
और वो अपनी शीशी के अंदर डाल दिया करती थी। तो हुजूर ने पूछा कि इसको क्या करोगी? फरमाया मैं खुशबू में इसको संभाल के रखूंगी, उनमें बरकत अल्लाह ताला अता फरमा देगा। तो हुजूर के पसीना मुबारक में भी इतनी खुशबुएं थी। एक शख्स हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरी बेटी की शादी है। आपने फरमाया जा फिर ऐसा करके लकड़ी का एक टुकड़ा लेता और एक शीशी लेता। वो लकड़ी का टुकड़ा भी लेता है, एक शीशी भी लेता है। आपने पसीना मुबारक अपनी कलाई से उतार कर दिया, फरमाया कि अपनी बेटी से कहना पहली रात को इसको लगा ले। उसने लगाया, सहाबा फरमाते हैं खुदा की कसम उसके घर से इतनी खुशबुएं आती थी कि पूरे मदीने में वो घर खुशबू वाला मशहूर हो गया, जिसको हुजूर ने खुद अपना पसीना मुबारक अता फरमाया। आप देखें हुजूर इस्लाम के खून मुबारक में कितनी अल्लाह ताला ने शिफा रखी थी और लुआब दान में कितनी शिफा रखी हुई थी। आज कहते हैं यहाँ पर थूकना मना है, क्यों? यहाँ पर गंदगी फैलती है, थूके मत। लेकिन हमारी फितरत होती है, हमें वही थूकना होता है। लेकिन यहाँ हमारे थूक से गंदगियां पैदा होती हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु का लुआब दान देखिए, वो हजरत अफरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो करबला के मैदान में पहुंचे हुए, आज कहते हैं तुम्हारा इश्क क्या सहाबा से बढ़ गया? अरे उनसे इश्क बढ़ जाए जिन्होंने लाशें कत्तों पे उठाई हो, उनसे इश्क कैसे बढ़ सकता है? जिन्होंने सामने सहाबा की गर्दनें कटती हुई देखी हो, उनसे इश्क कैसे बढ़ सकता है? हजरत अफरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगे बदर के अंदर जब अबू जहल को मारने के दर पे थे, उनका बाजू कट गया और लटक रहा था। जब लटक रहा था तो उन्होंने कहा ये मेरा बाजू अबू जहल को मारने के लिए रुकावट बन रहा है। तो उन्होंने अपने पांव के नीचे बाजू को लेकर तोड़ दिया, खींचा, ऐसे नाड़े टूटी, फिर भी हौसले जवां थे और इतने हौसले जवां थे कि मैं अबू जहल को कत्ल करके आऊंगा। जब वो कत्ल हुआ फिर हुजूर की बारगाह में आ रहे थे, रास्ते में देखा बाजू पड़ा हुआ है, उसको उठाया, मोटे पे रखा, हुजूर की बारगाह में चले गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बाजू कट गया है। आपने बाजू पकड़ा, कंधे से लगाया, मुंह में तहर लगाया, खुदा की कसम फरमाते पहलू बाजू से ज्यादा ताकत इस बाजू में थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लुआब दहन के लिए हजरत उरवा बिन मसूद अभी ईमान नहीं लाए थे। क्या थे वो? ईमान नहीं लाए थे। बहुत बड़े कुफार के एजेंट थे। कहने लगे मैं कैसरो किसरा के महल में गया हूँ, वहां नजाशी के दरबार में भी गया हूँ, सोने के तख्तों पे बैठा हूँ, कनीनों पे बैठा हूँ। आज मैं हुदैबिया में तो हो गया हूँ जहाँ ईंटों के सराहने पड़े हुए हैं। कहने लगे जब मैं वहां गया ना, 3 दिन रहने के बाद वापिस गए तो कुफार से क्या कहते हैं, कुफारो अब मैं तुम जैसा नहीं रहा। मैं तो वहां गया था बादशाह और रियाया वाला मामला देखने, वहां तो आका और गुलामों वाला मामला था। उनके गुलाम ऐसे गुलाम दुनिया के अंदर कोई तालीम अपने आका की इतनी नहीं करता जितने वो तालीम करते हैं। उनके आका जब अपना लुआब दान होठों से जुदा करते हैं, आगे आ जाते हैं, हाथ कर लेते हैं, नीचे नहीं गिरने देते और ये नहीं कि दीवार पर मर लेते हैं, अपने चेहरों पर मर के लोगों को बता देते हैं कि दुनिया वालों जब मुस्तफा का लुआब चेहरे पे मर लेते हैं हम चांद से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं। उनके सहाबा ऐसे सहाबा इतना अदब कि जब वो वुजू फरमाते हैं तो उनका एक कतरा नीचे नहीं गिरने देते। वुजू के लिए भी वो पानी अपने चेहरों पे मलते हैं, जिसके हाथ पे कुछ नहीं लगता वो ऐसे ही हाथों पे हाथ मस्त करता चला जाता है। पहले इतना अदब मैंने किसी का नहीं देखा जितना महबूब के गुलामों ने महबूब का अदब करते हुए देखा है। ये लुआब दहन ने इतनी शान रखी थी। और आइए सुने कि महबूब सल्लल्लाहु को अल्लाह तबारक व तआला ने देखने की ताकत कितनी अता फरमाई थी। आज हम कितना देख लेते हैं, यहाँ वहां तक देख लेते हैं, कहां तक देख लेंगे। लेकिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा आसमान से एक आवाज आई है जिसको मेरे कानों ने सुना है, तुमने नहीं सुना। मैंने उसको महसूस किया, तुमने नहीं किया। मैं उसके सबब को भी जानता हूँ। फरमाया पहले आसमान पर फरिश्ते इतने ज्यादा हो गए थे, जब उन्होंने सजदा किया है उस सजदा करने की वजह से जो आवाज पैदा हुई है मेरे कानों ने वो आवाज भी सुन लिया, उसका सबब भी जान लिया। हुजूर इस्लाम नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे से आगे खड़े हैं, उनको फरमाया आगे आ जाओ। वो नमाज पढ़ने के बाद आगे आ गए, उनका नाम लेकर फरमाया तुमने रकात के तीसरी रकत में या दूसरी रकत में ये गलती की है और नमाज के अंदर जो गलती की है तुमने ये की है, ये ना समझ लेना कि मैं तुमसे वाकिफ नहीं हूँ। फरमाया मैं आगे भी नजर होती है, मैं रहनुमाई तुम्हारी भी कर रहा होता हूँ, तुम्हारी भी आगे रहनुमाई कर रहा होता हूँ, इसलिए कि तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे ज़ाहिर को भी जानता हूँ, तुम्हारे बातिन को भी जानता हूँ। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नजर अता फरमाई थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैंने रब की तजल्ली को देखा था वो कोहे दूर पर
डायरेक्ट नहीं देखा था, इनडायरेक्ट देखा था। और अल्लाह ने मुझे कितनी ताकत अता फरमा दी, कहते हैं बेहोश हो गया और ताकत कितनी आ गई, 40 मील दूर रात का अंधेरा हो, पहाड़ की चोटी हो, फरमाया उस पर चोटी चलती मैं उसे भी देख लेता। इतनी ताकत वो आ गई थी कि 40 मील दूर, और जब चाहता उस वक्त देख लेता। तो जिसने रब के जलवे देखे हो और इंडायरेक्ट देखे हो, उनकी नजर का आलम क्या होगा। इसीलिए आला हज़रत ने कलम उठाया, और तुझसे क्या नेहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा सकते करोड़ों दुरूद। बात ही खुदा की छुपने वाली, जब वही नहीं छुपी तो फिर और कौन सी चीज है जो आपसे छुपे। तो मोहम्मद को अल्लाह तबारक व तआला ने वो नजर अता फरमाई है, देखने की वो ताकत अता फरमाई है। आगे चलिए, ये एक तवील मौजू है, इसी वक्त पे आएगा तो इंशाल्लाह टाइम हो 1 घंटा, तो फिर बंदा बात करे तो फिर मजा आता है। लेकिन मुख्तसर आगे कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सुनने की और महसूस करने की ताकत कितनी अता फरमाई थी। सूंघने, हम क्या सूंघते हैं, हम सूंघ लेते हैं इसमें से क्या खुशबू आती है, कहां से खुशबू आती है। हमारे तीसरे घर में बिरयानी पक रही है, वहां से खुशबू आ जाएगी। लेकिन अल्लाह के नबियों को अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई होती है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 94 के अंदर, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिलने के लिए जाते थे और जाके उनसे मिलने के लिए गए, उन्होंने कहा था ना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, मेरे भाइयों जी मेरा कुर्ता ले जाना, मेरे बाप के चेहरे पे डाल देना, उनकी आंखें रोशन हो जाएगी। कहा था ना ये 93 आयत है, और 94 के अंदर क्या लिखा हुआ है, फरमाया जब जिस वक्त वो कुर्ता लेके आ रहे थे, 8 दिन की मुसाफत का फासला था, रात और दिन 8 दिन की मुसाफत का फासला था। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, यूसुफ की खुशबू आ रही है। ये कुरान कह रहा है, अल्लाह ने अपने नबियों को इतनी ताकत फरमाई है। जब नबी अलैहिस्सलाम जहां पर बैठे होते थे, मुसल्ला रसूल मुसल्ले पे बैठे होते थे, फरमाते थे मुझे यमन से खुशबू आती है। वो यमन से जो खुशबू आती थी वो किसकी खुशबू थी, वो हजरत अवैस करनी की खुशबू दिया करते थे। और जो आप फरमाते मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवा आती है, इधर से जो मिलादे मुस्तफा की ये रोशनियां होनी थी, इन रोशनियों की हुजूर उस वक्त 14 सदियां पहले खुशबू दिया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक यहूदी औरत ने बकरी बेची रोस्ट करके, और उसकी अगली टांगों के अंदर जहर रोज कर दिया, जहर मिला दिया अगली टांगों के अंदर, तवज्जो बेहतर, अगली टांगों के अंदर जहर मिला दिया। जब वो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना शुरू कर दी, सहाबा भी साथ है, अब खाना शुरू की तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा हाथ रोक लो, हाथ रोक लो। अगली टांग का यूं गोश्त पकड़ा, बोटी पकड़ी, कहा जिसने ये रोस्ट करके बेची ना उसको बुला के लेके आओ। उसको बुलाया गया, कहा तुमने इसकी अगली टांगों के अंदर जहर मिलाया था? उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाया था, लेकिन मैंने तो किसी को इल्म भी नहीं है मेरे सिवा, आपको बताया किसने है, आपको खबर किसने दी है?